ہے شہ بندھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک شعر کو میں تشریح کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا کریم نواز صاحب الہ آباد میں رہے ہیں، میں بھی تھوڑے دن رہا ہوں، فادر ہوں، جامعہ میں پہنچا تھا۔ الہ آباد کے ایک ولی کامل جن کا مزار آج بھی موجود ہے، حضرت منور شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کہانی سناتا ہوں، یہ غوث اعظم کے نام سے جلسہ منعقد ہے، غور کر کے سنیے، بہت مزہ آ جائے گا۔ یہ منور شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے رشتہ دار میں سے ہیں، بولیے منور شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے رشتہ دار میں سے ہیں۔ جب بچپن کا زمانہ تھا حضور منور شاہ بابا کا، تو آپ بغداد پہنچے ہوئے تھے مہمانداری میں، بچپن کا زمانہ تھا، غوث اعظم کہ یہاں مہمان بن کے پہنچے تھے، کچھ دن رکے اور غوث اعظم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور سامنے سے منور شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا زمانہ آگے گھوم رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، عمر چھوٹی مگر سوچ بہت بڑی۔ منور شاہ بابا کیا کہتے ہیں، غور کر کے سنیے کہ آب حیات ہوتی کیا چیز ہے جس کو لوگ پیتے ہیں تو عمر لمبی ہو جاتی ہے، آب حیات کیا چیز ہوتی ہے جس کو لوگ پیتے ہیں عمر لمبی ہوتی ہے۔ بار بار دل میں سوچ رہے تھے، بار بار سوچ رہے تھے، مگر سنیے غوث اعظم سے کہہ نہیں رہے تھے، زبان سے بول نہیں رہے تھے۔ آج کل دنیا کہتی ہے کہ دنیا ہم نے نیٹ ورک کے ذریعے سے مٹھی میں لے لیا، مگر اتنی بڑی کامیابی ابھی بھی نہیں ملی ہے جو جناب غوث اعظم کی کامیابی تھی۔ بول دیجئے، انہوں نے کہا نہیں منور شاہ بابا نے غوث اعظم سے کہ آب حیات کیا چیز ہوتی ہے، دل میں سوچ رہے تھے۔ غوث اعظم کی نگاہ حضرت منور شاہ بابا کے دل میں پہنچی، منور شاہ بابا سے حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے منور تم کیا سوچتا ہے دل میں کہ آب حیات ہوتی کیا چیز ہے کہ جس کو پیتے ہیں تو عمر لمبی ہوتی ہے، آب حیات کیا چیز ہوتی ہے؟ اے منور سنو، میں جو وضو کرتا ہوں تو میرا وضو کا پانی آب حیات سے کم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث الاعظم، تعلیمات غوث الاعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم نے جو ہی فرمایا، میرا وضو کا پانی جو ٹپک رہا ہے یہ آب حیات سے کم نہیں ہے۔ منور شاہ بابا کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی ولی کے خاندان میں سے تھے، بچپن کا زمانہ اگرچہ تھا، عقل بہت بڑی تھی۔ منور شاہ بابا سمجھ گئے کہ یہ آب حیات سے کم نہیں ہے تو میں کیوں نہ آب حیات پی لوں۔ منور شاہ بابا گئے، غوث اعظم وضو فرماتے ہیں، وضو کا ٹپکا ہوا پانی منور شاہ بابا چلو میں لیتے ہیں، ایک چلو پی گئے، پھر غوث اعظم وضو فرماتے ہیں، منور شاہ بابا نے چلو میں جمع کیا، دو چلو پی گئے، پھر منور شاہ بابا نے چلو میں پانی جمع کیا، تین چلو پی گئے، پیتے پیتے جب 6 چلو پیے، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، منور بس کرے بس، تمہاری عمر 600 سال کی ہو گئی، اگر اور بھولے گا بڑھاپا ستائے گا، بڑھاپا کی عمر ستائے گی، منور بس کرو۔ جب میرے غوث اعظم کے چلو میں پانی کا یہ عالم ہے تو نبی پاک کے چلو کا عالم کیا ہوگا؟ زمین کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ
درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، جہاں بڑے بڑے جید عالم ہوتے ہیں وہاں پر جلسہ بہت بڑا کامیاب ہو جاتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے عالم کی تشریف آوری ہوتی ہے وہاں عروج پر ہر کچھ پہنچ جاتا ہے، ہر چیز عروج کو پہنچ جاتی ہے، ہر شے عروج کے منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں جید عالم دین موجود ہیں، ایک شعر اور اعلیٰ حضرت کا پیش کر دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ مطلب سمجھیے، سمجھاتا ہوں، ایک بڑی سن سے شکر ہے، ایک چھوٹی سن سے شکر ہے۔ تو چھوٹی سن سے شکر کا مطلب ہوتا ہے بے ہوشی کا عالم۔ اور سنیے تو اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء کو غشی کا عالم طاری ہوتا تھا، بعض اولیاء کو غشی طاری ہوتی تھی، بعض اولیاء سوچتے تھے غشی کے عالم میں کہ میرا مرتبہ غوث اعظم سے بڑھ کے، میرا مرتبہ غوث اعظم سے بڑھ کے ہے یہ غشی کے عالم میں۔ سنیے، حضرت غریب نواز کو کبھی کبھی اتنی غشی آ جاتی، اتنی خشیت الہی میں ڈوب جاتے آپ کہ حضرت قطب الدین آگے جگاتے، کبھی کبھی کان میں آذان پڑھتے کہ حضور غریب نواز آپ اٹھائیے، آذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا پڑے گا، تو آپ جاتے۔ تو سنیے، بعض اولیاء جو کہتے تھے غشی میں کہ میرا مرتبہ غوث اعظم کے مرتبہ سے زیادہ ہے، تو ان کا جواب اعلیٰ حضرت نے دے دیا۔ سنیے کیسے دیا، سنیے۔ غوث اعظم ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے، مجمع بہت بڑا تھا، آپ تقریر کر رہے تھے، آپ تقریر کرتے کرتے آپ کی نگاہ نے کیا دیکھا کہ اوپر سے حضرت خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ اوپر سے خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے بھی تقریر کرنا بند کر دی، تقریر کرنا روک دی، آپ بھی اڑتے گئے حتیٰ کہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہتے ہیں اے خضر، بنی اسرائیل کے نبی، آپ اڑتے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ اسمان علامہ محمدین، آپ نیچے اتریے اور مجھ سے نبی کا کلام سنیے۔ خضر علیہ السلام اتر جاتے، غوث اعظم واز کرتے، خضر جو بنی اسرائیل کے نبی وہ غوث اعظم سے واز سنتے، میرے رضا نے فیصلہ کر دیا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اور تھوڑی سی بات ہے اور سن لیجئے، ایک شعر اعلیٰ حضرت کا، بہت مزہ آ جائے گا۔ آج لوگ کچھ ڈرتے ہیں، ارے ڈرنے کی بات نہیں ہے، کسی نے جان ہار کر کے قرآن لے کر کے آگ میں اترنا چاہا، وہ مرد مجاہد زندہ، مرد مجاہد زندہ، تم ڈرتے ہو؟ میں کسی کی برائی کرنے نہیں آیا، نبی اور اولیاء کی تعریف کرنے آیا ہوں۔ اور جب تک جسم میں چاند رہے گی، جب تک تم میں تب رہے گا، نبی کا ذکر کرتا رہوں گا، ولی کا ذکر کرتا رہوں گا، اور نبی کا ذکر ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا، قیامت میں ہی نبی کا چرچا چلتے ہیں۔ پاک سناتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے بات تیری رضا، کوئی کیوں پوچھے بات تیری رضا، تجھ سے کتنے ہزار ہوتے ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، کوئی کتے بھی کہتے ہیں، میں کتا نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب تھا کتے، یہ اردو کی بولی ہے، کتے منے کتنے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اعلیٰ حضرت کا پڑھے تھے، سنیے۔ ایک مرتبہ جب آپ سفر حج کرنے کے لیے گئے تھے، مدینہ منورہ پہنچے، روضہ اقدس میں پہنچے، اور وہاں آپ 3 دن تک درود شریف پڑھتے رہے، آپ چکر کاٹتے رہے طواف کی طرح، روضہ انور کا چکر لگاتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ درود شریف پڑھنے کا مطلب اور
घूमने का मतलब ये था कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मैं इंडिया में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर खड़े खड़े नबी के बारगाह में सलाम पढ़ा है। मैं बेगम देख के नबी को के बारगाह में सलाम पढ़ा है, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा है। आज यहाँ पढ़ता हूँ, मतलब ये है कि दुरूद पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ने के सबब से दुरूद पढ़ूंगा, चक्कर लगाऊंगा, चक्कर लगाने के सबब से मेरे नबी का जलवा नजर आ जाएगा, नबी का दीदार हो जाएगा। जब ये नियत करते आप पढ़ते रहे, जब 3 दिन तक आपको जलवा नजर नहीं आया, जब सरकार की ज़ियारत नहीं हो पाई, तो आप अपने आप बोल पड़े, ए अहमद रजा, तुम इतना छोटा अदना गुलाम हो करके नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, कि दुरूद पढ़ूंगा नबी की ज़ियारत हो जाएगी, दुरूद पढ़ूंगा नबी का दीदार हो जाएगा। यहाँ तो मदीना है, तुम जैसे कितने लाखों करोड़ों आते हैं और जाते हैं, किसी को ज़ियारत नसीब होती है, किसी को ना होती है। इतना अदना गुलाम और इतनी बड़ी तमन्ना लिए मदीना में दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ूंगा तो नबी की ज़ियारत हो जाएगी, दुरूद पढ़ूंगा नबी का जलवा नजर आ जाएगा। अहमद रज़ा, तुम जैसे कितने आते हैं, ज़ियारत होती किसी को नहीं। जब नाई नजर आया तो बोल पड़े, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौसुल आज़म, तालीमात गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जब रोने लगे मेरे रज़ा, रोने लगे, जब कब्र अनवर का चक्कर काटने लगे, दुरूद पढ़ने लगे, जब रोने लगे, वो इतने बड़े आशिक थे क्या कहना, इतने बड़े आशिक के नबी थे क्या कहना। बोलते थे जली जली बू से उसकी पैदा है, सो जिसे इश्क चश्मे वाला कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। हज़रात सुनिए, वही आशिक को जब ज़ियारत ना हुई रोने लगे, जब रोने लगे, खूब रोने लगे, तो अल्लाह की रहमत को जलाल आ गया, नबी की रहमत को जलाल आ गया। नबी ने सोचा, नबी की रहमत ने गवारा ना किया, अल्लाह की रहमत ने ये गवारा ना किया कि ये अहमद रज़ा इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का एक मुजद्दिद बन के चमकेगा, मेरे दीन की खिदमत करेगा। और रूठेगा तो रूठने दो, अहमद रज़ा हिंद का रूठने ना पाए, तो नबी की रहमत जलाल आई, तो नबी को दिखाया, अहमद रज़ा को नबी ने अपना जलवा, अपना दीदार करवाया, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करवाया। देखला का आलम रज़ा जाने, दिखाने का आलम मेरा मुस्तफा जाने, मगर देखो वाकई तो रज़ा बोल पड़े, पेशे बगैर हो रोका, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद। आप लोग थकिए नहीं, इंशाअल्लाह एक से एक बड़े से बड़े उलमाए किराम यहाँ तशरीफ रखे हैं, सबसे अच्छी अच्छी बातें सुनी है। हज़रात आप क्या जानते हो, लोग गौसे पाक की हकीकत क्या जाने, हम तो इतना जानते हैं गौसे आजम ने मुर्दा को जिंदा किया, हम तो इतना जानते हैं गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाली, हम इतना ही जानते हैं, मगर हकीकत माना में हम नहीं समझ पाएंगे कि गौसे आजम का मर्तबा क्या है, गौसे आजम का अकीदा, गौसे आजम का मकाम क्या है, हम नहीं जानेंगे। हमारे गौसे आजम के मर्तबा को हकीकत माने में अगर जानता है तो अल्लाह पाक जानता है, हकीकत माने में जानता है, नबी ये मुख्तार जानते हैं। रातराने मिल्लत इस्लामिया, आपने गौसे पाक के नाम से जलसा किया, एक रोज आपने जलसा किया, एक रात आप जिंदा रहेंगे, जगे रहेंगे, तो आपको अगर गौसे आजम ने कबूल फरमा लिया तो आपकी नजात भी हो जाएगी, आपकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लाम है, एक वाक़या सुना देता हूँ, फिर बैठ जाऊंगा। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सुनिए हज़रात, हम और आप तो सिर्फ जलसा ही वाले हैं, ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, मगर हमारा माशरा बड़ा खराब है। इश्तिहार में लिखा था गौसे आजम व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, एक
वाकया माशरा में बोल देता हूँ, सुनिए। एक औरत, यहाँ की बात नहीं सुनाता हूँ, मैं अरब की बात सुनाता हूँ, सुनिए। एक औरत बेवा हो गई और उसका बच्चा रहा जिसकी उम्र 9 साल थी। सुनिए, जब बेवा हुई उसकी उम्र बच्चे की 9 साल, बच्चा यतीम हो गया। अब सुनिए आगे, वो बेवा औरत और वो यतीम बच्चा एक चचा के यहाँ परवरिश पाने लगा। उसका चचा जब पालता रहा उसको काफी तकलीफ हुई, तो उसके चचा को जब काफी तकलीफ हुई, बिरादर सुनो, आज भी हमारे हिंदुस्तान में, आज भी हमारे बिहार कटिहार और पुनियार में देखा जाता है, अगर किसी के यहाँ कोई भाई मर जाता तो उसका भतीजा को देखने वाला, कोई अच्छा से परवरिश करने वाला नजर नहीं आता। सुनिए, आज उस जमाने की बात बताता हूँ जब सरकार मदीना का जमाना था। बोल दो, गौर करके सुनो। एक बेवा औरत थी, एक बच्चा था यतीम बच्चा, और बेवा औरत अपने देवर के यहाँ, अपने चचा के यहाँ परवरिश पाने लगे ये दोनों। जब चचा को तकलीफ हुई, उसकी माँ को इतना सताया, इतना परेशान किया कि उसकी माँ कहीं जाके और निकाह कर ली। अब वो यतीम बच्चा पहले बाप का सहारा रहता था, उसकी माँ चली गई, अब वो माँ का सहारा रहने लगा और चचा उससे काम बढ़ा लेता था। वो बकरियां चराने जाता था, वादियों में जंगलों में बकरी चराता था। वो रोता रहता था, मेरे अब्बा का सर से साया निकल गया, मैं चचा के यहाँ रहता था, मेरी अम्मी रहती थी, मेरी अम्मी भी यहाँ से निकल गई, अब मैं क्या करूं, बकरियां ही चराना पड़ेगा और कोई सबील नजर नहीं आती है। वो बच्चा परेशान नजर आता था। वो काफी जब परेशान होने लगा, वही बकरियां चराता रहा। अचानक एक दिन बकरी की जमात से एक बकरी आगे निकल गई। वो बच्चा सोचा, अगर ये बकरी जमात से निकल जाए और कहीं भटक जाए, रह जाए, तो फिर मुझे हिसाब बड़ा चुकाना होगा। मेरा चचा बड़ा जालिम है, मेरा चचा बड़ा जाविर है, वही हिसाब बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा, लिहाजा बकरी को पकड़ लेता हूँ। वो बकरी को पकड़ने की गरज से आगे भागता गया। बकरी आगे भागती गई, वो पकड़ने के लिए चलता रहा। बकरी आगे भागती गई, बकरी को पकड़ ना सका, हत्ता के मदीने की गली में घूमने लगी बकरी। वो भी बकरी को पकड़ने की गरज से बच्चा जाता रहा, बकरी को पकड़ ना सका। अचानक एक गली में सरकार मुस्तफा तशरीफ फरमाते। बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार मुस्तफा तशरीफ फरमाते, जो ही सरकार के चेहरे की तरफ बच्चा की नजर पड़ी, वो मोमिन बच्चा नहीं था, अगरचे अरब का था, मुस्लिम बच्चा नहीं था, मगर जो ही सरकार की तरफ नजर पड़ी, वो बकरी पकड़ना भूल गया, बकरी को रोकना भूल गया। अब गौर से बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा, गौर से हुजूर की ज़ियारत करने लगा। जब ज़ियारत करने लगा, सरकार देखने लगे। सरकार कहते हैं, ओ बेटा, तुम क्या मुझे गौर से देखता है, मैं तुझे कैसा लगता हूँ, तो मुझे क्यों बार बार देखता है। बच्चा तंग होकर के कहता है, मैं क्या बताऊं कि आप कौन हो, मैं क्या जानूं कि आप कौन हो, इतना तो सुन लो, आज तक मेरी नजर में तुम जैसा हसीन और जमील नहीं नजर आया, देखा नहीं, आज तक मेरी नजर में तुम जैसा खूबसूरत नहीं देखा। मैं क्या बताऊं आप कौन हो। रज़ा बोल पड़े, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खारी से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ब्रदर सुनो, अब वो बच्चा को जब बार बार देखने लगा, अब सरकार इरशाद फरमाते हैं, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, तो मैं बता देता हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मैं ही अल्लाह का नबी हूँ। इतना कहना था, बच्चा मोहम्मद की तारीफ सुन चुका था। बच्चा ने जो ही लफ्ज़ मोहम्मद सुना और भी गौर से देखने लगा। सरकार देखने लगे, सरकार मुस्कुराने लगे, बच्चा भी मुस्कुराने लगा, सरकार हंसने लगे, बच्चा भी हंसने लगा। और सरकार ने जो ही रहमत उस बच्चे पे डाली, सरकार ने मुस्कुराया तो बच्चा की किस्मत का सितारा चमकाने लगा, बच्चा खूबसूरत आदमी होने लगा, किस्मत का तारा चमकाने लगा। बच्चा देखता रहा, नबी देखते रहे। आला हज़रत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसाने ही दिल की तरह बड़े रहमत, बादों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। साथ दो बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अब बच्चा गौर गौर से देखता रहा। नबी ने फरमाया, ए बेटा अब तो चाह, तेरी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी बेटा, चाह, तुम्हारी माँ परेशान होगी बेटा, वापस चले जा। अब बच्चा बोल पड़ता है, आका मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, अगरचे आया था मैं बकरी को पकड़ने की गरज से, अगरचे आया था बकरी को वापस लाने की गरज से, मगर आपका चेहरा देख लिया, आप में आया था खाली हाथ, जाऊंगा दामन पसार के, मतलब क्या है? बोले नबी मैं आपके पास आया अगरचे खास तौर से नहीं था, आपका चेहरा देख लिया, आया खाली हाथ, जाऊंगा दामन भर के, मतलब कलेमा पढ़ा दो, मुसलमान बन के वापस जाऊंगा। अब बच्चा ने कलमा पढ़ा, नबी ने कलमा पढ़ाया, अब बच्चा रोने लगा, अब बच्चा वहीं रहने लगा, बच्चा सोचने लगा मैं रह जाऊं। सरकार ने इरशाद फरमाया बेटा चले जा, नहीं मैं यहाँ रखूंगा नहीं, तुम्हारी माँ परेशान हो जाएगी, चली जा। वो बच्चा वापस हुआ। तो सुनिए किस अंदाज में जाता है। जब नबी का कलमा पढ़ लिया, मैंने पहली कहा था अल्लाह फरमाए जली जली बू से उसकी पैदा है, जो जिसे इसके चश्मे वाला कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। अब वो बच्चा जाता है तो जिधर से गुजरता है कहता है नबी नबी, वो बच्चा जहाँ गुजरता है बोलता नबी नबी, घर पहुंचा तब भी बच्चा बोलता है नबी नबी, अब वो बकरियां चराता तब भी बोलता है नबी नबी, बच्चा गुस्ल खाना जाता तब भी बोलता नबी नबी, बच्चा खाने बैठता तब भी बोलता नबी नबी। ये नबी का तराना बच्चा गाने लगा। उसकी माँ ने कहा बेटा कैसा तराना गाता है, अगर तेरा चचा सुन लेगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। भतीजा बोल पड़ा नहीं, अब मैं जब तक नबी का नहीं था मैं नहीं बोलता था, अब हो गया हूँ, अब डर किसका, चाहे भगाए या रख दे। अब चचा ने सुन लिया ये नबी का तराना गाता है, ये खाता मेरा है, गाता किसी और का है, इसको भी भगाना पड़ेगा, इसको भी भगाने की सूरत लगानी पड़ेगी। अब वो बच्चा को भगाने की सूरत लगा रहा है। वाकया है सुनो, एक दिन फिर बकरियां चराने वो बच्चा चला गया, नबी नबी गाता रहा, पूरा रास्ता नबी नबी गाता रहा। जंगल में वादी में एक झाड़ी के नीचे बैठ करके रोने लगा। अब क्या रोता है? कहता है आका आपने मुझे कलमा पढ़ा दिया, नबी आपने मुझे कलमा पढ़ाया, आका आपने मुझे दीवाना बनाया, मैं रहने चाहता था आपने भगा दिया। आका सुनिए अब तुम कहाँ हो और मैं कहाँ, तू कुजा मन कुजा, नबी तूने कलमा पढ़ाया, दीवाना बनाया, दीदार कब कराएगा? ए नबी मुझे अपना दीदार कराओ। मुफ्ती आज़म सरकार इरशाद फरमाते हैं क्यों आग लगाई थी, क्यों आग लगाई है, खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। रात बच्चा रो रहा था, जब रोते रोते वो इसी तरह बेहाल होने लगा, पीछे से चचा पहुंच गया, हाथ को पकड़ लिया, पकड़ के कहता है अच्छा यही काम तू यहाँ करता है, बकरी नहीं चराने के बजाय तू नबी नबी गाता है, अच्छा ऐसा ही काम करता है, चल घर चल। मेरे साथ पकड़ के घर लाया और घर लाने के बाद कहता है खाता मेरा है, गाता किसी और का है। ए बाबू ये मकान लेगा या ये जायदाद लेगा, बता, या नबी की मोहब्बत लेगा, बता। देर के लिए खामोश हो गया, खामोश रहा, यानी खामोश रहा तो दिल में सोचता रहा। बच्चा कहता रहा अच्छा ये चचा कहता मकान लेगा या जमीन लेगा या नबी की मोहब्बत। बच्चा दिल में सोचा ये दुनिया जाने वाली है, मौत आने वाली है, नबी की मोहब्बत हमेशा काम आने वाली है, ये मकानात कब रहने वाले हैं, ये जायदाद कब की चीज है। वो बच्चा सोचा ये जायदाद को जान दो, ये मकान को जान दो, मैं नबी को मोहब्बत ले लूंगा। फिर चचा ने दूसरा मर्तबा कहा भतीजा या नबी की मोहब्बत ने कहा। बच्चा की जब का जवाब सुनिए ईमान ताजा हो जाएगा। बच्चा बोल पड़ा ए चचा मोहतरम ये मकान तुम्हें मुबारक हो, ये जायदाद तुम्हें मुबारक हो, ये दुनिया तुम ले लो, नबी की मोहब्बत मुझे दे दो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अब जब नबी की मोहब्बत माना, अब चचा ने कहा ठीक है वाक़या पूरा हो गया, 1 मिनट 2 मिनट है, पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना। चचा कहता है तुम्हें निकाल दिया जाएगा, बिल पर जब उसको निकाल दिया गया, नंगा करके बदन से कपड़े भी ले लिए, चप्पल भी ले लिए। अब वो बच्चा परेशानी के आलम में जाता है और कहता क्या करूँ, माँ तो है नहीं, मगर माँ तो माई है, जिसके घर में था थी
माँ उसको पता था। माँ के पास पहुंच गया, वो बच्चा पहुंचने के बाद दस्तक दी। माँ ने देखा नंगा बदन है। बेटा, ये हाल तुम्हारा किसने किया? हालत तुम्हारी ऐसे क्यों हुई? बच्चा कहता, चाचा अम्मी जान, जिस चचा मोहतरम ने तुम्हें बेदर्दी के साथ भगाया था, वही चचा सालिम ने मुझे भी बेदर्दी के साथ भगाया है। मुझे तो जाना है जिनका कलमा पढ़ा हूँ, उस नबी के पास जाना है, मगर इसी हालत में कैसे जाऊंगा? माँ ने एक चादर निकाली, उसका दो हिस्सा किया, दो टुकड़ा किया। माँ ने एक चादर को इज़ार के तौर पर पहना दी, एक चादर को कमीज के तौर पर उड़ा दी। चल बसा। अब एक कोना में जाके हुजरे पाक के पास में हिम्मत नहीं होती है। बच्चा बोल पड़ा, नबी तो सारे दुनिया के लिए नबी है, नबी तो पूरे दुनिया के लिए आका है, नबी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनके पास ऐसी हालत में कैसे जाऊंगा? सरकार के साथ सिद्दीक़ अकबर थे हुजरे में। सरकार ने देख लिया, बताया नहीं मगर देख लिया, जान गया वो बच्चा जो बकरी पकड़ने आया था वो यहाँ इसी हालत में बैठा है, और कोई गैर का तुमसे लिया होगा तब ना खुदा ही चुका तुम पे करोड़ों करोड़। बात आप सिद्दीक से फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक जाओ, वो वहाँ कोना में बच्चा आया है, मेरे पास लाओ। सिद्दीक आ गए, कहते बाबू चल तुझे नबी ने बुलाया। बच्चा कहता है मुझे नबी ने? ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगा? बिल्कुल से वो ताखीर किया। नबी खुद बखुद उठ के आ गए, आके कहते हैं, गले लगाते हैं बच्चा से, ए बाबू तुम सोचता है कि परेशान होके आया है? ए सुन लो, ऐसे नबी पे आने में कोई झटक नहीं। सुनो, जिसका इस दुनिया में कोई हामी नहीं, मददगार नहीं, उसका मैं मोहम्मद मददगार होता हूँ, उसका मैं मददगार होता हूँ। तुम फिक्र क्यों कर रहा था? आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा जिनका कोई नहीं उनका मोहम्मद हामी हो जाते हैं। तब सरकार सुनिए, अगर बोलने में कोई किस्म की खता हुई हो, लफ्ज़न सहवन कसदर, तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब कोई मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।